प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह साहब को कि एक गृह मंत्री होने के नाते उनको अर्नब को एक इंटरव्यू देना पड़ता है गुजरात चुनाव के बारे में, और प्रधानमंत्री मोदी को भी रैलियां करनी पड़ती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री होने के नाते और गृह मंत्री होने के नाते आप देश के लिए काम कब करते हो? चुनाव प्रचार करते हो, एमसीडी चुनाव का सेटिंग करते हो, चुनाव आयुक्त कौन होना चाहिए उसकी सेटिंग करते हो, सत्ता की आदत और सत्ता की परेशानी बड़ा बवाल बन जाती है उन नेताओं को जिन नेताओं को सत्ता पर बने रहने का हक होता है, उन नेताओं को जिन नेताओं के ऊपर सवाल उठाए जा सकें, उन नेताओं पर जो नेता जिनकी जिम्मेवारी देश को संभालने की है, वो नेता चुनाव प्रचार में मस्त हो जाते हैं। जी हां, लगता नहीं कि गृह मंत्री विधानसभा के चुनावों में एक टुच्चे पत्रकार अर्नब को एक इंटरव्यू देते हुए पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, छापा पड़ जाता है उन पर। जी हां, नाम है अमित शाह, जो अपने अर्नब के इंटरव्यू के दौरान दावा करते हैं कि हम बहुत बड़ी जीत जो है हासिल करेंगे। जी हां, इनके दावे गुलाबी मौसम की तरह बदलते हुए दिखाई देते हैं जब गुजरात के अंदर गुजरात की जनता के आंसू दिखाई देते हैं, मोरबी के हत्यारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। Good evening and welcome viewers. I have just returned from a short trip to Gujarat. And while such short first impressions of a journalist don't amount to anything really in pre-election season because the situation is very complex, I did meet and interview the grand strategist of the BJP, Home Minister Amit Shah, last evening, and I will be playing out that interview right on top tonight. Mr. Amit Shah is laser focused on the details of every region of the state and every constituency. And while he tried to downplay his role, it is clear that he has been leading the plan execution on the ground. Through the first 15 minutes of the interview, which I am playing tonight, he totally dismissed the Aam Aadmi Party as a factor. He said it's media hype, and he said the Congress is the principal opposition party, which is interesting because the top Congress leadership has all but vacated the contest, it seems. So perhaps the BJP thinks that the residual Congress vote won't shift. So there is a lot to be read into Mr. Amit Shah's analysis in that exclusive interview, the first big interview of this season, and it gives you his take on the pre-election picture and the trends that are emerging. Also tonight, ladies and gentlemen, the bone-chilling letter that has been written, the bone-chilling letter that was written by Shraddha in an official complaint to the Mumbai police. The letter is dated November 2020. In the letter, she says to the Mumbai police, she says that Aftab is threatening to kill me and cut me into pieces. Please help me. She's literally begging the Mumbai police to intervene and save her from the possibility of being killed and chopped into pieces by Aftab. Ladies and gentlemen, the Uddhav Thackeray government, the incompetent Uddhav Thackeray government, the incompetent MVA government, which only wanted to go against its critics, which only wanted to destroy Republic, which did not want to help the citizen, did absolutely nothing. Absolutely nothing. So in a way, they hold some moral responsibility for what happened to Shraddha. Devendra Fadnavis is absolutely right when he says that this matter will have to be investigated. Why did Uddhav's government not act against Aftab when they knew what Aftab could do to Shraddha? What was the Uddhav Thackeray government and its police forces' real intention? The nation wants to know, ladies and gentlemen. The nation wants to know. That is my debate at 10 o'clock tonight. I also have the big election interview, as I just said, with Amit Shah. That's running sometime from now, and that will be followed at 10 o'clock this evening with the debate on whether the cops under Uddhav went slow against Aftab, and if so, why? And also, ladies and gentlemen, at 10:30 p.m. tonight, or a little bit after that, how the Aam Aadmi Party should be really ashamed of itself that this man, who Kejriwal says is a great man, is having a massage, having a 5-star meal, and having a great time in Tihar jail. Mr. Kejriwal, look at the pictures and think. Think, Mr. Kejriwal, think. हिंदू ही तो पकड़े जाते हैं,
भले ही वो एक सिक्योरिटी गार्ड हो। एक गुजराती तो बच जाता है जिसने पुल का ठेका लिया हो, घड़ी बनाने वाला बच जाता है जिसको पुल का ठेका दिया हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर इसके बाद भी जिस बात का दावा अमित शाह कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर गुजरात की जनता प्रधानमंत्री मोदी को जो है, या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नाम पर गुजरात की जनता बीजेपी को वोट देती है, तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात की जनता बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। गुजरात की जनता इसका मतलब बिजनेस मैन है, मतलब अपना ईमान भी बेच देती है, अपना सब कुछ बेच देती है। गुजराती हो, बुरा मत मानना। ऐसा ही तो प्रधानमंत्री मोदी बोलते थे, मैं गुजराती हूं, खून व्यापार मेरे खून में है। इसी का फायदा शायद उठाने एक दूसरा शैतान पॉलिटिशियन आया है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल, जिसके मंत्री बड़ी बेशर्मी के साथ चंपी कराते हैं एक रेपिस्ट के साथ। मजामा ठीक है। लेकिन अमित शाह की बात जब चल रही होती है तो कुछ रैलियों की तस्वीरें नजर आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में कुछ कुर्सियां खाली नजर आती हैं। लोग बोलने लगते हैं, भाई कुर्सी ज्यादा बिछ गई थी, भीड़ कम आई। ये बहुत अच्छा एक बयान है जो कवर अप कर सकता है मोदी जी की रैली की असफलताओं को। लेकिन ये असफलताएं देश तक कैसे पहुंचेंगी? जो असफलताएं 2014 में कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की पहुंचाई जाती थीं, जब निर्भया का बलात्कार कांड हुआ था उसमें, और उसके बाद अन्ना आंदोलन को याद कीजिए कि अन्ना आंदोलन ने इतना ज़्यादा नेक्सस फैला दिया था। और मैं आप इसमें मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि अन्ना आंदोलन की कामयाबी और उस मीडिया में जितना भी हाथ था कांग्रेस के उन नेताओं का था जो उस टाइम मीडिया प्रभारी थे। कांग्रेस ने ही कांग्रेस को डुबोया था। सटापटी का गेम बहुत चलता है, आपको पता नहीं है। कांग्रेस में भी ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह साहब को कि एक गृह मंत्री होने के नाते उनको अर्नब को एक इंटरव्यू देना पड़ता है गुजरात चुनाव के बारे में, और प्रधानमंत्री मोदी को भी रैलियां करनी पड़ती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री होने के नाते और गृह मंत्री होने के नाते आप देश के लिए काम कब करते हो? चुनाव प्रचार करते हो, एमसीडी चुनाव का सेटिंग करते हो, चुनाव आयुक्त तो कौन होना चाहिए उसकी सेटिंग करते हो, और जब सुप्रीम कोर्ट चांटा मार देता है आपको, तब आप कहीं के नहीं रहते। क्या शर्मनाक हरकतें हैं। ऐसी शर्मनाक हरकतें तो उन लोगों की भी नहीं थी जिन्होंने आजादी दिलाई। जिन पटेल साहब पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आप बोलते हो और डैम पर बोलते हो, वो डैम भी नेहरू जी ने स्वीकृत किया था, ठीक है। और जिन पटेल और नेहरू की दुश्मनी के बारे में बोलते हो, उनके बीच रिश्ता क्या था? क्या नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी है, या नेहरू जी की भारत खोजो यात्रा के बारे में आपने पढ़ा है, कि भारत माता कौन है इसके बारे में पढ़ा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी आप केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नफरत का ज्ञान फैलाना जानते हो? आपके बारे में तो अशोक मोची ने भी खुलासा कर दिया। आप केवल और केवल सत्ता पाने के लिए सियासत करते हैं। यहां डिफरेंस लगता है। सुप्रीम कोर्ट की झाड़ पड़ने के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी सुधर पाएंगे? और जिस तरह से गुजरात में इनका बहिष्कार हो रहा है और जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उस पर सीधा सा एक ताना और लग जाता है राहुल गांधी का। एक मूर्ख हेमंत बिश्व शर्मा के बयान आते हैं जो बोलते हैं कि राहुल गांधी का चेहरा सद्दाम हुसैन से मिलता है। ये कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। राहुल गांधी ने जब ये इनको राहुल गांधी जी से मिलने गए थे तो राहुल गांधी के पास इनकी पूरी रिपोर्ट थी भाई साहब की, ये चीज क्या है। तो वो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाना ज्यादा पसंद कर रहे थे हेमंत बिश्व शर्मा के सामने, क्योंकि उनको पता था ये दो कौड़ी का आदमी है। इतनी गहरी समझ राहुल गांधी के अंदर थी। और दूसरा एक वीडियो है इस हेमंत बिश्व शर्मा का जो अपने आप में ये बताता है कि जिस पार्टी के साथ आप रह करके आए उसके बारे में आप बोल क्या रहे हो। आप गांधी परिवार पर सवाल उठा रहे हो, उस गांधी परिवार पर जिसने अपना तन बदन इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दे दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दे दी। लेकिन मुझे एक संघी का नाम बता दो जिसने कुर्बानी दी हो, एक बीजेपी के नेता का नाम बता दो जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो, जिसने इसने कठोर निर्णय लिए हो स्वर्ण मंदिर पर सेना चढ़ाने के, जहां आतंकवादी भंडार वाले था।
वो इंदिरा गांधी थी। ऐसा कोई प्रधानमंत्री राजीव गांधी बता दो जिसने तमिल एकता के लिए अपनी कुर्बानी अपने बम के टुकड़ों में दी गई हो। प्रधानमंत्री मोदी को तो डर नागालैंड के बारे में भी बोलने से लगता है, चीन के बारे में भी बोलने से लगता है। बस उनके चुनावी अक्स में पाकिस्तान शामिल रहता है। मोदी जी, आप बस चुनाव प्रचार कर सकते हो, मीडिया को मैनेज कर सकते हो, न्यायपालिका को मैनेज कर सकते हो, लेकिन गांधी जैसे लोग होना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी जैसा होना या बनना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी को आप हराते रहिए 2036 तक, लेकिन राहुल गांधी ने जो इज्जत कमाई है, उसके माँ बाप ने, उसके खानदान ने जो इज्जत कमाई है, उसको आप रोक नहीं सकते। कंप्यूटर लेकर के आए थे राजीव गांधी। ये जो दूरदर्शन जब शुरू में आया और ये टीवी बना, ये इंदिरा गांधी लेकर के आई थी। इतनी बड़ी सोच थी। रिहन डैम, IIT कॉलेजेस, पोर्ट्स, ये नेहरू की देन थी। पढ़े लिखे लोग पढ़ी लिखी चीज लेकर के आए, और मोदी जी आप सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर हिंदू महासभा की तलवार लेकर के आए, जिसमें हिंदुओं के हाथ में आपने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला करके बस काटने का ऑर्डर दे दिया। क्या मतलब, अगर कोई आपकी इन घटनाक्रमों पर कोई बहस करेगा तो वाकई में आपकी बेइज्जती होगी। और एक बयान अमेरिका में भी आया है, एक सांसद ने आपको तानाशाह बोल दिया है। तो मोदी जी, शुक्र कीजिए, मुसोलिनी बनने से हट जाइए दूर, थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव कीजिए। अदानी अंबानी क्या है, बस सारा पैसा देश का इनको लुटा दोगे। कभी भारत माता का नारा देते हो, कभी भारत माता के बारे में सोचते हो? भारत माता के 135 करोड़ जनता के बारे में सोचते हो? 60 करोड़ बेरोजगारों के बारे में सोचते हो? कभी सोचा है कि ट्विटर ने कितने लोगों को निकाल दिया, फेसबुक ने कितने लोगों को निकाल दिया, अमेजॉन ने कितने लोगों को निकाल दिया, हिंदुस्तानियों को, अरब कंट्रीज ने कितने लोगों को निकाल दिया अपने देश से? कभी सोचा? आप प्रचार में मस्त रहिए, मजा लीजिए, मजा में गुजरात, मजा में प्रधानमंत्री मोदी, मजा में अमित शाह। भाई, दिल की उम्मीद क्या जगा सकते हैं हेमंत शर्मा जैसे लोग गांधी को गाली देते हैं, और अमित शाह जैसे लोग गृह मंत्री जो हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी रिक्शे पर प्रचार वाले बन करके गुजरात चुनाव में उतर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।